چین مشکل وقت میں پاکستان کے شانہ بشانہ، امدادی سامان کی ایک اور کھیپ اسلام آباد پہنچ گئی۔ 6 ٹن سامان میں وینٹیلیٹرز، ماسک اور دیگر طبی سامان شامل۔ چیئرمین NDM میں لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کا کہنا ہے سامان کے پیکٹس الگ الگ کر کے آزاد کشمیر سمیت دیگر علاقوں کو روانہ کر دیے گئے۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کا چیلنج، وزیر اعظم نے آج پارٹی کی بڑی بیٹھک بلا لی۔ PTI کور کمیٹی کا اجلاس آج کچھ دیر بعد بنی گالہ میں ہوگا۔ کورونا سے متعلق لانگ ٹرم پالیسی پر مشاورت کی جائے گی۔ لاک ڈاؤن، معیشت، ملکی ضروریات اور سیاسی جماعتوں کے تعاون پر بات ہوگی۔ کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کی تشکیل اور رضاکاروں کی رجسٹریشن پر بھی گفتگو ہوگی۔ شہر اقتدار میں کورونا وائرس کے تدارک کا مشن، NDMA نے 12 کہو میں کلورین سپرے شروع کر دی۔ ادھر اسلام آباد میں پولیس کی جانب سے شہریوں میں ماسک اور دستانے تقسیم کیے گئے، آگہی بھی فراہم کی گئی۔ ادھر خیبر پختونخوا حکومت نے انوکھی پالیسی متعارف کرا دی، مشتبہ مریض پہلے 14 روز قرنطینہ میں گزارے پھر ٹیسٹ ہوگا، نوٹیفکیشن بھی جاری۔ خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ، 20 کلو آٹے کی قیمت 250 روپے تک بڑھ گئی۔ فائن آٹے کا تھیلا 950 سے بڑھ کر 1200 روپے کا ہو گیا۔ مکس آٹے کی قیمت 850 سے بڑھ کر 1100 روپے ہو گئی۔ یوٹیلیٹی سٹور سے بھی آٹا غائب۔ ادھر بلوچستان میں بھی آٹے اور چائے کی پتی کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا۔ جتنا ہوں گے محدود اتنا رہیں گے محفوظ، کورونا سے بچاؤ کے لیے ملک بھر میں لاک ڈاؤن جاری۔ دفعہ 144 کے تحت صرف فارمیسی، سبزی منڈی اور کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں کھلی ہیں۔ لاک ڈاؤن کے باوجود عوام کی غیر سنجیدگی برقرار۔ سنڈے کے روز لاہور کی گلی محلوں میں لوگوں کا ہجوم عام دنوں سے بھی بڑھ گیا۔ قصور میں بھی راشن لینے کے لیے حفاظتی اقدامات کے بغیر خواتین کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ سندھ میں لاک ڈاؤن کا 7واں روز، سکھر، کراچی، حیدرآباد سمیت شہر شہر سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بازاروں اور شاہراہوں پر گشت۔ سندھ میں گھر سے نکلنے والے شہریوں کا ریکارڈ رکھنے کے لیے پولیس سٹیزن مانیٹرنگ ایپ متعارف۔ ادھر کراچی کے جوڑیا بازار میں خریداری کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد امنڈ آئی اور کورونا احتیاطی تدابیر کو یکسر بھلا دیا۔ بلوچستان میں لاک ڈاؤن کا 6واں روز، تمام تجارتی مراکز، شاپنگ مالز، مارکیٹس اور دکانیں بند۔ ضروری کام کے لیے گھروں سے نکلنے والے افراد کو آپس میں 3 فٹ کا فاصلہ رکھنے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو کا کہنا ہے مشکل حالت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، معمول کی سرگرمیوں کا سورج بہت جلد طلوع ہوگا۔ وائرس سے جہاں معمولات زندگی متاثر ہیں، وہیں گھر بیٹھے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریضوں کی جان پر بھی بن آئی ہے۔ خون کا عطیہ کرنے والوں کی تعداد میں کمی دیکھی گئی۔ متاثرہ بچے فریاد کرنے لگے۔ متاثرہ مریضوں کو خوراک کی حد تک خون کی ضرورت ہے، مگر خون عطیہ کرنے والی تنظیموں کے لیے بھی خون کا بندوبست کرنا کڑا امتحان بن چکا۔ خدارا مشکل گھڑی میں ان مریضوں کا ساتھ دیں اور زندگیاں بچائیں۔ میرا والد ایک بزرگ ہے اور 8 بچوں کی کفالت کرتا ہے، لیکن جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے گھر میں نہ راشن ہے نہ کھانے پینے کی کوئی اشیاء ہے۔ میری حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے اپیل ہے کہ وہ ہمارے بچوں کا اور ہمارا خیال کرے۔ میں ڈیلی ویجز پہ کام کرتا تھا، کسی کی گاڑی چلاتا تھا، اس کو 1000 روپے روز دیتا تھا اور جو بچتے تھے وہ میرے ہوتے تھے، تو اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ میرے گھر میں راشن وغیرہ کی ضرورت ہے۔
92 न्यूज का एक और इंसानियत दोस्त इक़दाम हुकाम बाला तक पहुंचाएगा गरीब और मुस्तहिक अफराद का पैगाम। अगर लॉकडाउन के बायस आपके इलाके में राशन की कमी है तो 92 न्यूज का फोन नंबर 0334192027 पर अपने और इलाके के नाम के साथ वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें। कोरोना के खात्मे के लिए अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करें और हुकूमत को कीमती तजावीज़ भी आप भेज सकते हैं। मईशत का पहिया चलाने के लिए नए इक़दामात का फैसला। सरमायाकारी की बेहतरी के लिए प्लॉट्स की फरोख्त पर 20% विद होल्डिंग टैक्स में नरमी की तैयारी। नए फैसले के तहत प्लॉट 3 साल रखने के बाद बेचने पर 20% विद होल्डिंग टैक्स लागू नहीं होगा। हतमी मंजूरी आइंदा हफ्ते मुतवक्के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। याद रखिए, ये फौज, ये डॉक्टर, ये पुलिस, ये रजाकार, ये सहाफ़ी आपकी भलाई के लिए घरों से बाहर है। इनकी कुर्बानियों का एतराफ़ कीजिए, खुदारा एहतियात कीजिए। मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी और इस बुलेटिन में मैं आपका साथ दूंगी राफिया आवान। बुलेटिन का करते हैं बाकायदा आगाज और सबसे पहले बात करते हैं कि कोरोना वायरस में पाकिस्तान में आज 3 जिंदगियां निकलनी हैं। 2 अफराद ने कराची में और एक ने एबटाबाद में दम तोड़ा है। कराची में कोरोना से मरने वालों की उम्रें 70 और 83 साल है। एबटाबाद में इंतकाल करने वाले शख्स में 2 रोज कबल कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम रिंद, बताइएगा कि कराची में कोरोना वायरस से जाबाक अफराद का ताल्लुक किन इलाकों से है और क्या सिंध हुकूमत की जानिब से उनके अहले खाना के कोरोना टेस्ट कर लिए गए हैं? जी देखें, बिल्कुल जो इन दोनों का ताल्लुक जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों से है, लेकिन महकमा सेहत ने बिल्कुल वाजे किया कि उनके इलाकों का नाम ना बताया जाए। लोग जो है वो खौफजदा हो जाते हैं कि उनके इलाके में कोरोना से जो हलाक हो चुकी है। तो 2 अफराद जो है वो कराची के सरकारी अस्पताल में गुज़श्ता कई रोज से जेर इलाज थे, जिसमें एक 83 साल का शख्स था जबकि दूसरा 70 साल का शख्स था। ये दोनों अफराद कोरोना का शिकार भी थे और नमूनिया का शिकार भी थे। तो दोनों का कई रोज से इलाज जारी था, जो कि गुज़श्ता रात इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद महकमा सेहत ने बाकायदा अभी थोड़ी देर कबल जो है अपनी प्रेस रिलीज में उसकी तस्दीक कर दी है। तो इससे कबल जो है वो 77 साल शख्स भी इंतकाल कर चुका था। तो तमाम तीनों अफराद की जो उम्रें वो 70 साल से ज्यादा, 3 अमवात हो चुकी है पूरे सिंध में, जबकि 469 अफराद जो है वो पूरे सिंध में कोरोना के शिकार हो चुके हैं, जिसमें से 189 का ताल्लुक कराची से, जबकि 265 का सक्खर से, 1 का दादू से, 3 का जो है हैदराबाद से और 7 का लाड़काना से है। तो यूं जो है इसके बाद महकमा सेहत में मजीद जो है इंक्वायरियां कर तहकीकाती कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं और जो 2 अफराद इंतकाल कर चुके हैं उनकी तदफीन के हवाले से भी इकदाम किए जा रहे हैं और उनकी पूरी फैमिली के जो है वो टेस्ट करने का फैसला किया गया है और महकमा सेहत की टीमें जो है वो उनके घरों पर जा रही हैं। करने का फैसला किया गया है। सिंध हुकूमत की जानिब से इब्राहिम रिंद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रावलपिंडी के इलाके ढोक कश्मीरियां बिलाल कॉलोनी में एक घर के 11 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। मुतासरा अफराद का अस्पताल जाने से इनकार सामने आया। महकमा सेहत ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को मदद के लिए तलब कर रखा है। तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साजिद शेख। साजिद, बताइएगा क्यों नहीं जा रहे अस्पताल ये टेस्ट करवाने के लिए? देखिए, ये वो इलाका है जहाँ पर पुलिस ने गुज़श्ता रोज ढोक कश्मीरियां, ढोक पराचा, मजिस्ट्रेट कॉलोनी और दीगर इलाकों को सील किया था। यहाँ पर 11 अफराद हैं एक ही घर के, जिनके बारे में ज़राए का कहना है कि तस्दीक हुई है कि इनमें पॉजिटिव पाया गया है कोरोना और यही वजह है कि वो जाना नहीं चाह रहे। और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस, खास तौर पर रावलपिंडी पुलिस जो है वो मौका पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि उनको जल्द अज जल्द हॉस्पिटल या फिर करंटीना सेंटर मुंतकिल किया जा सके, मगर ताहाल अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। कहा यह जा रहा है कि कोरोना का एक तस्दीक शुदा मरीज है जो कि कराची से मुतासरा फैमिली के घर आया था और कराची से आने वाले शख्स खालिद का जो है वो स्टील मिल का मुलाजिम और कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। और कोरोना के घर 14 फैमिली मेंबरान में से 11 हैं उनमें से वायरस की तस्दीक हुई थी और उसके बाद से इलाके को मुकम्मल सील किया गया था। एसपी रावल जो है वो राय मजदर मौके पर मौजूद है। थाना की सादकाबाद की पुलिस मौके पर मौजूद है। तमाम तर लोग मौजूद हैं, दीगर रेंजर्स और पाक फौज के जवान भी मौजूद हैं। अब इस वक्त उनको शिफ्ट करने का मरला शुरू किया जाएगा, ताहम अभी तक उनको यहाँ से मुंतकिल नहीं किया जा सका। जी ठीक है साजिद, आगाह कर रहे थे आप, आपका शुक्रिया।
नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतें 31,045 और कोरोना मुतासरीन की आलमी तादाद 6,68,000 से तजावज़ कर चुकी है। इटली 10,000 से ज़ायद हलाकतों वाला पहला मुल्क, जबकि तादाद 10,023 हो चुकी है वहाँ पर। चीन में 3,300, ईरान में 2,517, फ्रांस में 2,314, अमरीका में 2,229 और बरतानिया में अब तक 1,019 मरीज हलाक हो चुके हैं। चीन के शहर वुहान से फूटने वाले कोरोना वायरस ने जब से आलमी वबा का रूप धारा है, सारी दुनिया पर खौफ छाया है। यूरोप मौत का मरकज और अमेरिका बीमारों का गढ़ बन चुका है। गुज़िश्ता रोज मजीद 889 मरीजों की हलाकत से इटली दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया है जहां 10,000 से ज्यादा कोरोना मुतासरीन हलाक हो चुके हैं। अब तक पूरे इटली में रिपोर्ट होने वाले कोरोना मुतासरीन की तादाद 92,000 से ज्यादा है। स्पेन में आलमी वबा की बदतरीन तारीख 28 मार्च थी, जब 844 अफराद लुकमाए अजल बने और मुतासरीन की तादाद में 7,500 का इजाफा हुआ। स्पेन में मजमूई हलाकतें तकरीबन 6,000 तक जा पहुंची हैं। फ्रांस में मजीद 319 कोरोना मुतासरीन हलाक हो गए, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 2,314 तक जा पहुंची। फ्रांस में 37,575 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। बरतानिया में भी हलाकतों में होशरबा इजाफा देखने में आ रहा है। वहां 1,000 से ज्यादा कोरोना मुतासरीन दम तोड़ चुके हैं। गुज़श्ता 2 रोज अमरीकियों के लिए बदतरीन साबित हुए। हलाकतों के अलावा मुतासरा अफराद की तादाद भी तकरीबन दुगनी हो गई। अमरीका भर में तकरीबन 1.25 लाख कोरोना मुतासरीन और 2,200 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट हुई हैं। और कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सऊदी हुकाम की जानिब से गैर मामूली इक़दामात का सिलसिला जारी है। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और रियाद के बाद जिद्दा में भी कर्फ्यू का वक्त बढ़ा दिया गया है। अब कर्फ्यू के औकात दोपहर 3 बजे से अगले सुबह 6 बजे तक होंगे। उधर अंदरून और बैरून मुल्क परवाजों को मजीद 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल रखने का फैसला, जबकि शहरों में ट्रेन और टैक्सी सर्विस भी बदस्तूर बंद रहेगी। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सऊदी हुक्काम की जानिब से गैर मामूली इकदामात का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए बनाई गई रियासती कमेटी ने फैसला किया है कि फ्लाइट ऑपरेशन मजीद 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल रखा जाए। अंदरून और बैरून ममालिक तमाम परवाजें ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेंगी। सऊदी अरब में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ट्रेन और टैक्सी सर्विस पर भी पाबंदी आयद रहेगी और कारोबारी सरगर्मियां हुकूमती हिदायत के मुताबिक ही जारी रखी जा सकेंगी। दूसरी जानिब मदीना मुनव्वरा, जद्दा और कतीफ समेत दीगर शहरों में जरासीम कुश स्प्रे का सिलसिला जारी है। शहरों को महफूज बनाने के लिए धोया भी जा रहा है। सऊदी अरब में अब तक 1,200 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला हुए, जिनमें से 4 मौत की वादी में जा चुके हैं। और गुड्स ट्रांसपोर्ट की आड़ में इंसानी स्मगलिंग का धंधा होने लगा है। लोगों को ट्रकों में भरकर कोयटा पहुंचाया जा रहा है। सैकड़ों अफराद कराची और मुल्क के दीगर हिस्सों से कोयटा पहुंच रहे हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रकों में भरा गया है। इस अहम इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा से हमारे नुमाइंदे फजल तवाब और कराची से फयाज यूनुस। पहले कोयटा की तरफ बढ़ते हैं। फजल तवाब, ये लोग कौन हैं? इन्हें इस तरीके से कोयटा क्यों लाया गया है? क्या वजूहात हैं? देखें, इस तरह है कि कराची में कोयटा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो है वहाँ पर उनके होटल है और ताजिर बरादरी है। ताहम जो हुकूमती ऐलान के बाद के जो कोयटा का राब्ता सिंध और दीगर सूबों से मुनक़ता कर दिया गया है, ताहम इसके बावजूद जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उन्होंने एक नया तरीका शुरू कर दिया है लोगों को स्मगलिंग का। और जो कराची से सैकड़ों की तादाद में लोगों को ट्रकों में भर भर कर भेड़ बकरियों की
तरह उसमें डालकर तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 12 से 15 घंटे का सफर जो है इन अफराद ने इन ट्रकों में किया है और इन ट्रकों के जरिए इनको कोयटा पहुंचाया गया है। मशरकी बाईपास पर कायम जो बस अड्डा है वहां पर इन लोगों को यहाँ पहुंचाया गया है, जिसमें नौजवान है, बुजुर्ग है और दीगर जो है अफराद शामिल है जो सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखते हैं और गैर कानूनी तौर पर ये कोयटा पहुंचे हैं। पूरे रास्ते में लेवीज जो पुलिस है और कस्टम हुकाम है उनके नाक के नीचे और जिले इंतजामिया के नाक के नीचे जो है ये ट्रकें जो है वो बगैर किसी पूछे बगैर रोके जो है वो कोयटा पहुंचाई गई है। तकरीबन 4 से 5 ट्रक है जिसमें तकरीबन जब हमने इस अंदाजा लगाया जा सकता है कि 200 से 250 अफराद है जो गैर कानूनी तौर पर बलूचिस्तान और कोयटा में दाखिल हुए हैं। इसके अलावा जो बलूचिस्तान के साथ मुंसलिक सरहदें हैं वहां पर भी गैर रवायती रास्तों से अफगानिस्तान और ईरान से जो अफराद है वो बलूचिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। चूंकि सरहदें बंद है, रास्ते बंद है, मगर जो गैर रवायती रास्ते हैं वहां पर लोगों से एक माफिया सरगर्म हो गया है, पैसे लेकर उनको बलूचिस्तान में दाखिल कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का हमने देखा कि इससे कबल भी मस्तंग में जो 12 से 13 अफराद गिरफ्तार हुए थे तो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सख्त अहकाम दिए हैं कि रवायती रास्तों को जो है वो उस पे जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो मजीद सख्त किए जाए। मगर इसके बावजूद जो है ये जो गुड ट्रांसपोर्ट है उसके आड़ में तवाब हमारे साथ ही रहिएगा। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने। लियाकत साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पूछना आपसे ये चाहते हैं कि कराची से कोयटा जगह जगह नाके हैं, जगह जगह लेवीज है, कैसे पुलिस की नाक के नीचे ये सब हो रहा है कि इतने सारे इंसान ट्रकों में भर भर कर जा रहे हैं? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? जी, चेक एंड बैलेंस जरूर है। परसों बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि जितनी भी गुड्स ट्रांसपोर्ट है इंटर प्रोविंशियल उनकी जो मूवमेंट है उसको नहीं रोका जाएगा। और परसों ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी ये डिसीजन लिया कि मुल्की सतह पे भी गुड्स ट्रांसपोर्ट की जो मूवमेंट है उसको नहीं रोकी जाएगी ताकि सप्लाई चेन मुतासर ना हो। अब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ट्रक्स में जिसमें गुड्स डालना चाहिए, जिसमें सामान आनी चाहिए, उसमें जो है ये लोगों को, इंसानों को डाल के ला रहे हैं। अब इस एक बात से आप अंदाजा लगाएं बलूचिस्तान गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट मेजर एंड चेक एंड बैलेंस के जो पब्लिक शाहवानी साहब, कता कलामी की माजरत, आपने अभी अभी कहा है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट खोली गई है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, तो जिस ट्रकों में गुड्स जाना चाहिए, जिनमें चीजें जानी चाहिए, कमोडिटीज जानी चाहिए, उनमें इंसान भर कर जा रहे हैं। और जो लॉ एंड ऑर्डर पास किया है हुकूमत पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल के लिए, इंसानों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा 3 मीटर और कम से कम 6 इंच का फर्क होना चाहिए। तमाम तर रूल्स की वायलेशन हो रही है। देखिए, मैं यही आपको अर्ज कर रहा हूँ कि अब ये गुड्स ट्रक्स में इंसाने भर के लाने पर इसलिए ये मजबूर हो रहे हैं, ये गलत रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं कि इनको ये यकीन हो चुका है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बलूचिस्तान के हदूद में इंटर ही नहीं हो सकती। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंटर होती या किसी बस में सवारी पकड़े जाते, किसी वैन में सवारी पकड़े जाते, तो ये आप स्टोरी ब्रेक करते, यकीनन हम इसके जिम्मेदार होते, हम जवाबदेह होते। लेकिन ये आप अंदाजा लगाएं कि उस पर इतनी सख्ती हो गई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कि ये जो है उसकी गुड्स की आड़ में ट्रक में गुड्स के बजाय लोगों को भर भर के ये जो ला रहे हैं, ये बिल्कुल वायलेशन है, रूल्स की वायलेशन है, इंसानियत की तौहीन है। और खसूसन इन हालात में जबकि 2 से ज़ायद अफराद के करीब होने पे जो है बिल्कुल 144 इम्पोज है, उसमें उन हालात में ये मजमूम इस तरह के काम कर रहे हैं। आई डू एग्री कि बिल्कुल ये वायलेशन है। लेकिन जो ही ये कल पहुंचा, ये जबल नूर कोयटा में पहुंचा है ये ट्रक जो आप फरमा रही हैं। लियाकत साहब, एक आखिरी बात आपसे ये जानना चाहेंगे, इस हवाले से कोई एक्शन लेगी बलूचिस्तान हुकूमत? ले लिया है। अब सुने, इसके खिलाफ नोटिस ले ली गई है। इस तरह के 500 से जायद जो ट्रांसपोर्ट की बसें हैं, दीगर गाड़ियां हैं जो हमारे 144 की जिन्होंने वायलेशन की, उनको चालान भी किया जा चुका है। तो ये जो है केस जो आप बता रही हैं, इसके ऊपर जो है हमने एक्शन ले लिया। ठीक है लियाकत शाहवानी साहब, आप हमारे साथ हैं, आपका शुक्रिया। आपका ये कहना है कि इस सिचुएशन पर एक्शन बलूचिस्तान हुकूमत ले चुकी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कराची से मौजूद हैं, फयाज यूनुस भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। और 92 न्यूज़ ने ये खबर ब्रेक की और उसके बाद बलूचिस्तान हुकूमत ने एक्शन ले लिया है, चालान भी किया गया है इन ट्रक ड्राइवर्स को। फयाज, आपकी तरफ आएंगे और आपसे बात करेंगे कि ये लोग जो हम दिखा रहे हैं 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर, ये कोयटा तो पहुंच चुके हैं, मगर अहम सवाल ये है कि कराची से कोयटा कैसे पहुंचे हैं ये?
देखिए बिल्कुल कराची में जैसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हुई तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट माफिया ने एक नया रूप धारा। सबसे पहले जो है उन्होंने कोशिश की कराची से अंदरून सिंध और बलूचिस्तान एम्बुलेंस से लोगों को लेके जाया जाए, लेकिन जैसी वहां पर गिरफ्तारियां शुरू हुई तो उसके बाद उन्होंने इन ट्रकों का इख्तियार लिया और एक ट्रक का जो किराया एक पैसेंजर का कराची से हैदराबाद का वो 300 रुपए कर दिया। और इन तमाम ट्रकों को इस तरीके से बनाया जाता है कि दूर से देखते ही ये लगते हैं कि ये लोडिंग ट्रक है और ये ट्रक जो है कराची से 10 के करीब जो है कच्चे के रस्तों से कराची से हैदराबाद, रहीम यार खान, सक्खर और बलूचिस्तान की तरफ ले जाए जा रहे, जिनके खिलाफ ताहाल कोई बड़ा कोई क्रैकडाउन नहीं किया गया। पुलिस और रेंजर्स की जो पिकटें हैं, मोटरवे की पिकटें हैं, वो टूल प्लाजा, नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे की जानिब है। लेकिन ये तमाम तर अफराद जो ट्रांसपोर्टर हैं इनको पता है कि कहाँ कहाँ नाके लगे हैं। ये उन नाकों से पहले जो इलाकों की तरफ चले जाते हैं, कच्चे के रस्तों से ये जो अपनी मंजिलों की तरफ जा रहे, लोगों की जानों से खेल रहे, काफी ज्यादा किराया वसूल किया जा रहा है। अगर हम बात करें कराची से जो सक्खर का किराया है अमूमन जो है वो 1200 रुपए से 800 रुपए तक वसूल किया जाता है, लेकिन ये 2000 रुपए तक वसूल कर रहे, लोगों को इन ट्रकों में छुपा कर लेके जा रहे। अगर कहीं पुलिस वाले इनसे पूछते हैं तो उनको बताते हैं कि ये गुड्स ट्रांसपोर्ट का ट्रक है, इसके अंदर सामान है। पुलिस के अफसरान कहते हैं कि 2 रोज कबल भी एक ट्रक को रोका था जिसके खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके अंदर से 25 के करीब जो है मुसाफिर निकले थे जो कराची से जो है हैदराबाद की जानिब जाना चाहते थे और हैदराबाद से जैकबाबाद और जैकबाबाद से जो है वो बलूचिस्तान जाना चाहते थे। इन तमाम तर अफराद को तंबी करके छोड़ा गया था, लेकिन अब मजीद सख्ती करेंगे। जी, ये कोई 2-4 इंसान नहीं है बल्कि सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जो कि कराची से कोयटा पहुंच रहे हैं। फयाज, आप हमें बता रहे थे कि इनसे किराया भी वसूल किया जा रहा है। किराया बिल्कुल वैसे ही लागू किया गया है जैसे कि बसों में ये तमाम पैसेंजर्स किराया देते हुए जाते हैं और जगह जगह नाके भी हैं और पुलिस भी हैं। इस पर हम बात भी कर रहे थे। लियाकत शाहवानी साहब ने ये कहा कि 92 न्यूज का जब ये खबर ब्रेक हुई और उसके बाद उन्होंने इस पर नोटिस भी लिया है और चालान भी किया है और यकीनन 92 न्यूज अपनी सहाफती तमाम तर जिम्मेदारियां निभाता रहेगा और अंदर की कहानियां बाहर आपके लिए लाता रहेगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फजल तवाब और फयाज यूनुस कोयटा और बाल तरतीब कराची से मौजूद थे। आपका शुक्रिया। कोरोना वायरस पंजाब के 20 शहरों में पहुंच गया है। सूबे में सबसे ज्यादा 570 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में मरीजों की तादाद 119 हो गई है, जबकि डीजी खान में 207 जायरीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। तफसीलात सुलेमान चौधरी की रिपोर्ट में देखिए। मूजी मर्ज का फैलाव बढ़ने लगा। पंजाब कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर होने लगा। पंजाब के 20 शहरों में कोरोना वायरस पहुंच गया। मजीद 12 अफराद इस मूजी मर्ज का शिकार हो गए। तर्जमान महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक सूबे में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद 570 हो गई। डीजी खान से 207, मुल्तान से 79 जायरीन, लाहौर से 119 और रायवन करंटीना सेंटर में 23 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। गुजरात में 52, गुजरावाला 11, जेहलम 21 और रावलपिंडी में 19 अफराद में मूजी मर्ज की तशखीस हुई। मुल्तान शहर में 3, फैसलाबाद 9, मंडी बहाउद्दीन 4, नारोवाल और रहीम यार खान से 1-1, विहाड़ी और सरगोदा में 2-2 अफराद वायरस में मुब्तला हुए। खुशाब और अटक में 1-1, बहावल नगर, ननकाना साहब और मियावाली में 2-2 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई। डीजी खान शहर में 5 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। पंजाब में कोरोना वायरस से 5 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 5 मरीज सेहतयाब होकर घरों को वापस चले गए। तर्जमान महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक तमाम कन्फर्म मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में दाखिल हैं। सुलेमान चौधरी, 92 न्यूज, लाहौर। गुजरात में कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों के पेश नजर शादेवाल, स्टॉक गली, घुमटी, सिमली और दीगर इलाकों को मुकम्मल सील कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे खालिद हुंजरा से। खालिद हुंजरा, ये जिन इलाकों को सील किया गया वहां पर इंतजामात कैसे हैं? जी बिल्कुल, गुजरात के इलाका शादीवाल में 16 मार्च को स्पेन पलट बिशारत नामी शख्स कोरोना का पहला मरीज कंफर्म हुआ। उसके 2 दिन बाद ही उसका बेटा 18 साल महेश अली भी कोरोना का मरीज बन गया। गुजरात में ओवरसीज पाकिस्तानी की कसीर तादाद मौजूद है जो कि अपने जब घरों को लौटे तो उन्होंने स्क्रीनिंग ना कराई। मकामी मेल जोल के बायस यहाँ पर मरज दिन ब दिन बढ़ता चला गया। चंद दिनों के बाद ही गुजरात में इस वक्त 50 से ज्यादा लोग कोरोना के मरज में मुब्तला हो चुके हैं, जिसमें सरकारी अस्पताल का एक डॉक्टर भी मौजूद है।
جہاں جہاں سے کورونا کے مریض سامنے آئے تو ضلعی انتظامیہ نے گجرات کے 16 علاقوں کو مکمل سیل کیا ہوا ہے۔ گجرات میں اوورسیز پاکستانی زیادہ ہونے کے باعث یہاں پر کورونا کا خطرہ زیادہ ہے، اس لیے گجرات کے شہری ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کرے۔ جن علاقوں کو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، یہاں سیل کیا گیا، وہاں کے شہری پرامن رہیں، ان کو خوراک اور دیگر بنیادی ضروریات ان کے گھروں پر دی جائے گی۔ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلے تاکہ لوگ اس طرح کی موذی مرض سے بچ سکیں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ خالد ہنجرا اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، گوجرانوالہ میں کورونا وائرس کے وار تیزی سے جاری ہے۔ اب تک 10 افراد میں کورونا کی تشخیص ہو چکی ہے اور اس آفت پر قابو پانے کے لیے انتظامیہ سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی۔ ایک علاقے سے 5 مریض سامنے آنے کے باوجود اس علاقے کو سیل نہیں کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ رفیق مغل سے۔ رفیق مغل، انتظامیہ کی اس نااہلی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ جی بالکل، قاتل کورونا کے وار رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ گوجرانوالہ میں بھی اب تک 10 لوگوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پہلا مریض 21 مارچ کو سامنے آیا تھا جس کا تعلق وزیر آباد سے تھا، اور اس کے بعد گوجرانوالہ کی تحصیل کاموکی سے 5 لوگوں میں کورونا وائرس کی تصدیق کی گئی تھی، اور ایک ہی خاندان کے 3 لوگ تھے جو کورونا کا شکار ہوئے تھے۔ گوجرانوالہ سے 3 علاقے محلہ بختے والا، سیٹلے ٹاؤن اور خیالی سے 3 لوگوں کو کورونا وائرس نے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ اور انتظامیہ جو ہے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظامات کرتی نظر نہیں آ رہی۔ جن علاقوں سے کورونا کے مریض سامنے آئے ہیں ابھی تک کسی بھی علاقے کو سیل نہیں کیا گیا، تاہم لاک ڈاؤن جاری ہے۔ فیکٹریاں تمام بند ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، روڈوں پر سڑکوں پر ٹریفک جو ہے وہ معمول سے کم ہے، لیکن گلی محلوں میں اسی طرح لوگ نظر آ رہے ہیں۔ ایک عید کا سماں لگتا ہے، لوگ چوک چراہوں میں بیٹھے خوش گپیاں لگا رہے ہیں، تھڑوں میں بیٹھے ہیں۔ دفعہ 144 بھی نافذ کی گئی ہے مگر اس پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ انتظامیہ سے جب ہم نے پوچھا کہ بیرون ملک سے آنے والے لوگوں کی کیا سکریننگ کی گئی ہے تو انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے پاس ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے کہ کتنے لوگ گوجرانوالہ میں ابھی تک بیرون ملک سے آئے ہیں تاکہ ان کی سکریننگ کی جا سکے۔ تو اسے لگتا ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ خود سے کوئی ایسا سٹیپ لیتی نظر نہیں آ رہی اور سنجیدہ نظر نہیں آ رہی کہ کورونا وائرس جو تیزی سے پھیل رہا ہے اس پر قابو پایا جا سکے گوجرانوالہ میں۔ جی صحیح، بہت شکریہ رفیق، آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے۔ یہاں شامل کریں گے ایک اہم خبر۔ سندھ میں لاک ڈاؤن کے تحت پابندیاں، سندھ میں اندرون شہر موجود پیٹرول پمپس کو بھی بند رکھنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ اندرون شہر پیٹرول پمپس بھی شام 5 بجے کے بعد بند رہیں گے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے ایسے میں اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے۔ سندھ میں اندرون شہر موجود پیٹرول پمپس کو بھی بند رکھنے کا حکم اب جاری کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے وحید راجپر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ وحید، آگاہ کیجیے گا اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ دیکھیں جی، یہ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے 29 اضلاع ہیں سندھ بھر کے، کراچی سمیت، جن کے پیٹرول پمپ شہر میں بند کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں باضابطہ طور پر ایک آرڈر جاری کیا گیا ہے۔ تمام جو کمشنرز ہیں، ڈی آئی جیز ہیں، ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہیں، ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ صبح 8 بجے سے 5 بجے تک شام کو جو ہے پیٹرول پمپ جو ہے کھلے رہیں گے۔ اس کے بعد پیٹرول پمپ مکمل طور پر بند کروائے جائیں، ان کو اجازت نہیں دی جائے۔ لیکن جو نیشنل ہائی ویز پہ ہیں، موٹر وے پہ ہیں، پیٹرول پمپ ان کی جو ہے وہ اس کی جو مستثنا ہوگی، کیونکہ یہ مختلف جو ٹرانسپورٹ۔ ٹھیک ہے وحید، آگاہ کر رہے تھے آپ کا بے حد شکریہ۔ بلیٹن جاری ہے، یہاں پر شامل کریں گے ایک بریک۔ آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ برطانیہ میں موذی وائرس کورونا کے جان لیوا وار جاری ہے۔ کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 1019 سے زائد ہو گئی ہے۔ 17,089 افراد متاثر، 135 افراد صحت یاب ہو گئے۔ حکومت نے اسپتالوں میں موجود ڈاکٹرز اور دیگر عملے کے ٹیسٹ بھی لینے شروع کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں غلام حسین ابان کی رپورٹ۔ شہزادہ چارلز کے بعد اسکاٹ لینڈ کے سیکرٹری ایلسٹر جیک بھی کورونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کے اندر بخار اور کھانسی سمیت کورونا کی دیگر علامات پائی گئیں، جس پر انہوں نے خود کو الگ تھلگ کر لیا۔ حکومت نے ایک بار پھر شہریوں سے گھروں میں رہنے اور کام کاج کی جگہوں پر سماجی فاصلے برقرار رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ مشرقی لندن کے ایکسل سینٹر کو عارضی ہاسپٹل میں تبدیل کیا جا چکا ہے۔ انتظامیہ نے اس کا نام مشہور نرس نائٹ اینگل کے نام پر نائٹ اینگل ہاسپٹل رکھا ہے۔ غلام حسین وان، 92 نیوز، UK۔
دنیا بھر میں کورونا وائرس جہاں 28,500 سے زائد جانیں نگل چکا ہے، وہیں اب امریکہ میں کورونا وائرس کی متاثر افراد تیزی سے سامنے آ رہے ہیں، جہاں 1 لاکھ سے زیادہ مریضوں میں کورونا کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 1700 سے زائد شہری اپنی جانیں بھی گنوا بیٹھے ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے مرنے والوں میں مسلمان بھی شامل ہیں، جن کو باقاعدہ اسلامی طریقہ کار کے مطابق مسلم قبرستانوں میں دفن کیا جاتا ہے۔ خرم شہزاد رپورٹ کریں گے۔ چین سے شروع ہونے والے کورونا وائرس کے ہولناک حملے دنیا بھر میں جاری ہیں۔ یورپ کے سبھی ممالک اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اور اب امریکہ اس کے نشانے پر ہے، جہاں پر دن بدن کورونا کے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کی 50 ریاستوں میں مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 40 لاکھ ہے۔ دیگر شہریوں کی طرح مسلمان بھی کورونا وائرس کا شکار ہو رہے ہیں۔ کورونا کے باعث وفات پانے والے مسلمانوں کو نماز جنازہ کے بعد مسلم قبرستانوں میں باقاعدہ اسلامی طریقہ کار کے مطابق دفن کیا جاتا ہے۔ عالمی اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ کورونا متاثرین کی تعداد امریکیوں کی ہے، جو 1,05,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ان میں سے 1700 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ امریکی ریاستوں میں سب سے زیادہ تباہی کورونا نے نیو یارک میں مچائی، جہاں متاثرین کی تعداد 50,000 اور مرنے والے 606 ہیں۔ واشنگٹن میں 175، لوزینا میں 119، نیو جرسی میں 108، کیلیفورنیا میں 102، مشیگن میں 92، جارجیا میں 65، فلوریڈا میں 46، میساچوسٹس میں 35، کولوراڈو میں 31، کنیکٹیکٹ میں 27، ٹیکسس میں 26 اور ریاست انڈیانا میں 24 افراد شامل ہیں۔ امریکہ میں 2,500 سے زیادہ مریض صحتیاب بھی ہو چکے ہیں۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن، امریکہ۔ اطالوی وزیر اعظم جوزپے کونتے نے آئندہ ہفتے کورونا وائرس کے حوالے سے خوشخبری کی امید ظاہر کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ مریضوں کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ کورونا وائرس کے خلاف آخری دم تک لڑیں گے تاکہ تاریخ میں یاد رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ کو مل کر کورونا وائرس سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ تنویر ارشاد رپورٹ کریں گے۔ 10,000 ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں۔ اطالوی حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں سختی کے باوجود اس موذی مرض پر قابو پانے میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ اطالوی وزیر اعظم جوزپے کونتے نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگلے ہفتے ماہرین سے ملاقات ہوگی اور امید ہے کہ وہ موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے حوالے سے کوئی خوشخبری سنائیں گے۔ جوزپے کونتے نے مزید کہا کہ ضرورت مند لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء پہنچانے کے لیے 400 ملین یورو جاری کر دیے گئے ہیں۔ اطالوی وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ معیشت کو دھچکا پہنچا ہے، تاہم تعمیر نو کے لیے مارشل پلان کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تدریسی عمل کو 3 اپریل سے دوبارہ شروع کرنا فی الحال ممکن نہیں، جبکہ ضروری اشیاء کی صنعتوں کی بندش کے حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ حکومت تمام تر صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے اور تمام معاملات کو نہایت ذمہ داری سے دیکھ رہی ہے۔ اسکواش کے سابق عالمی چیمپئن اعظم خان کورونا وائرس کا شکار ہو کر چل بسے۔ اعظم خان کی 95 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ لیجنڈ کھلاڑی 1959 تا 1962 4 بار برٹش اوپن چیمپئن بھی رہے ہیں۔ مزید تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ کورونا وائرس نے اسکواش لیجنڈ اعظم خان کی جان بھی لے لی۔ اسکواش کے عظیم کھلاڑی کورونا وائرس کے باعث 95 برس کی عمر میں خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ اعظم خان انگلینڈ میں مقیم اور کچھ عرصے سے لندن کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ گزشتہ ہفتے اعظم خان کا کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ اعظم خان نے 1959 سے 1962 کے دوران 4 بار برٹش اسکواش چیمپئن شپ جیتی تھی۔ ان کے بھائی ہاشم خان 1951 میں برٹش اوپن جیتنے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی تھے۔ وہ اسکواش کے لیجنڈ جہانگیر خان کے چچا تھے۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر عارف حسن نے اعظم خان کے انتقال پر تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کا اثاثہ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور بلیٹن میں شامل اہم خبریں آپ جان چکے ہیں، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔